All right, welcome back. सबका स्वागत है। I hope you're learning something. मैं आशा करता हूं कि आप कुछ सीख रहे हैं। Okay, fantastic. So we've been talking about false worship, तो हम लोग झूठे आराधना के बारे में बात कर रहे थे right? How pride is dangerous, और किस प्रकार अहंकार खतरनाक है। right? I mean, we started looking at idol worship. और हम मूर्ति पूजा को देखना शुरू किए। Okay, so we're going to take some time in just understanding, just like pride, how dangerous idol worship is. और हम और समय थोड़ा बिताएंगे यह सीखते हुए कि किस प्रकार घमंड के समान ही मूर्ति पूजा भी खतरनाक है। Okay, so can we go a little deeper? Is that okay? तो क्या हम और थोड़ी गहराई से जाएं? यह ठीक है आपके लिए? Yes? Okay, all right. Yeah. So in the Bible, तो बाइबल में God, when He is leading the people of Israel out of Egypt, और परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल रहा था He had one very important commandment. तो उसके पास एक बहुत ही जरूरी आज्ञा थी। That was, you see in Exodus chapter 20, verse 3, तो वहां पे देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 3रा वचन and Deuteronomy chapter 5, verse 7. और व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। Okay, God very clearly says, you shall have no other gods instead of me. और परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि मुझे छोड़ किसी और को भी तू ईश्वर करके ना जानना। Right? Why is God telling Israelites this thing? क्यों परमेश्वर इजरायलियों को इस बातों को कह रहा था? Two reasons. दो कारण हैं। Now, the people of Israel, तो जो इजराइल के लोग थे they were in Egypt as slaves और वे मिस्र देश में दास के रूप में for how many years? कितने साल तक थे? How many years कितने साल were Israelites in Egypt as slaves? इजरायली मिस्र देश में थे? 430 430 इयर्स। कितने साल थे? Okay, 400 correct. इयर्स। 400 years. So they were in Egypt for in a total of 430 years, तो वो कुल मिला के मिस्र में 430 साल तक थे। but the 30 years was when Joseph was alive. तो 30 साल उस समय का था जब यूसुफ जिंदा था। So they were not oppressed. तो उनको कोई अन्याय नहीं हुआ था उनके ऊपर। After Joseph's death, और यूसुफ के मरने के बाद there rose another king और एक और राजा जन्मा who started oppressing the Israelites. जो उन पर अन्याय किया करता था। Okay, for 400 years. 400 साल तक। It's not a joke. यह कोई मजाक की बात नहीं है। Britishers ruled India for 200 years. जो ब्रिटिश थे वो भारत को 2200 साल तक राज किए। Israel was with Egypt for double the time. और इजराइल जो मिस्र में थे वो वह उसका दुगुना थे। So 400 years सो 400 साल से is equivalent to 10 generations. वह 10 पीढ़ियों के बराबर है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? 400 years is equivalent to 10 generations. 400 साल वह 10 पीढ़ियों के बराबर है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो So- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So his children, his children, his children, his children, his children, his children, and then it stops there. तो उनका वंश फिर उसका वंश फिर उसका बच्चे उनका वंश वहां और वो वहां तक रुकता है। So why am I saying this? मैं ये क्यों कह रहा हूं? For 10 generations, 10 पीढ़ियों से Israelites were exposed to the idols of Egypt. और इजरायलियों को उन मूर्तियों को दिखाया गया जो मिस्र देश में थे। 10 generations is not a joke, 10 पीढ़ी कोई मजाक की बात नहीं है, isn't it? है कि नहीं? Like you can lose a lot of faith in God in one generation
instead of 10. और आप एक पीढ़ी में भी अपने विश्वास जो परमेश्वर पे है वो खो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 10 पीढ़ी की बात हो रही है। And so that's one of the reasons why God is telling them, thou shalt have no other gods. तो वही एक कारण है जो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपका कोई, मुझे छोड़ कोई और ईश्वर नहीं होना चाहिए। Because in this 400 years or in 10 generations, none of them have seen or heard who this God of Abraham, Isaac, and Jacob is. और इन 10 पीढ़ियों में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कि यह आइजक और अब्राहम का परमेश्वर कौन है। And so when they were coming with Moses तो जब वो मूसा के साथ आ रहे थे to Mount Sinai, और सिनै पर्वत पर, right, you will read it in Exodus chapter 19 onwards. और निर्गमन के 19वें अध्याय के में आप उसको पढ़ेंगे, For the first time in 400 years, और 400 सालों में पहली बार, they are seeing and hearing who this God is. और 400 सालों में पहली बार वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। The whole mountain is on fire और पूरा जो पर्वत था उस पर आग लगी हुई थी, and they get scared. और वे डरे हुए थे। And they tell Moses, उन्होंने कहा, मूसा, hey Moses, मूसा, you go speak with this God yourself. जाओ तुम ही खुद जाकर इस परमेश्वर से बात करो, We don't want to speak with him. हम इनसे बात नहीं करना चाहते, Okay, we will listen to everything he says. और हम जो भी वो कहते हैं उसको सुनेंगे। They were lying वो झूठ बोल रहे थे simply because they were too scared क्योंकि वह बहुत डरे हुए थे after seeing the whole mountain on fire. कि उस पूरे पहाड़ पर जब उन्होंने अग्नि को देखा, आग को देखा। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Yes? Okay, please pay attention. So for 400 years they have not seen God. और 400 सालों से उन्होंने कोई परमेश्वर को नहीं देखा था, And now God is ready to lead them out of Egypt. और परमेश्वर अब तैयार है उसको मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए। So God is leading them from a land of idol worship और परमेश्वर उनको मूर्ति पूजा के देश से to a promised land और एक वाचा के देश में, where there are people जहाँ पे लोग हैं, who also do idol worship. वहां पे भी लोग मूर्ति पूजक हैं। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? Okay, so this is very important and I want you to pay attention. और ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, आप कृपया अपना ध्यान यहाँ बनाए रखें। Okay, so that's why he says in Exodus 20 verse 3 says, do not have any other gods before me. इसलिए वो कहता है कि मेरे अलावा किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। And if you read these scriptures that I've written, जो भी मैंने वचन को लिखे हैं आप उसको पढ़ेंगे, which I gave in the last class, जो मैं लास्ट क्लास में दिया, like Exodus 23, Exodus 34, Deuteronomy chapter 7 verse 5, एक्सोडस का 23 का 24 और एक्सोडस 24 का 34 का 13 या और ड्यूटेरोनोमी 7 का 5, the first thing, one of the जो सबसे पहली चीज God tells them is, जो परमेश्वर उनसे कहते हैं, when you go into the land of Canaan, जब आप कनान देश में जाएंगे, break down the altars of false worship. और जो भी झूठी आराधना का जो वेदी बनाया है उस सबको तोड़ डालो। Don't compromise. आप किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज मत करना, Don't begin to worship like they worship. और जिस प्रकार वह आराधना कर रहे हैं वैसा तुम भी आराधना शुरू कर मत देना। Don't compromise. तुम किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज मत करना। I don't want you to negotiate with them. हम नहीं चाहते कि आप उससे बातचीत करें। Okay, let's come to mutual ground. आइए हम साझेदारी में आ जाएं। Okay, 50-50. 50% से 50%। Okay, we'll do this, we'll do that. हम ये करेंगे, आप ये करेंगे। There is no negotiating with idol worship. कोई भी वार्तालाप नहीं होगी मूर्ति पूजा को लेकर। No negotiation. कोई भी वार्तालाप नहीं होगी। God says, और परमेश्वर कहते हैं, break their altars. उसके जो वेदी है उसको तोड़ डालो, Tear down their altars. उसको फाड़ डालो। Don't have anything to do with that. उसके साथ अपना कोई भी लेना देना ना रखो। Why is God so strictly telling them not to worship false idols? क्यों परमेश्वर बहुत ही कड़ा होकर मूर्ति पूजा ना करने के लिए कह रहा है? Why? क्यों? Does anybody know the names of the false gods that the Canaanites worshipped? किसी को मालूम है वो उस मूर्तियों के नाम या भगवान के नाम या देवी देवताओं के नाम जो वो पूजा करते थे कनानी लोग? Baal. बाल। Correct. Yeah. Did everybody know that? क्या सब जानते हैं इसे? Baal. Okay. Baal. बाल देवता। So
Baal simply means the master, बाल का मतलब होता है मालिक, right? He is the master, वह मालिक है। right? In the land of the Canaan, और कनानियों के देश में, he had different manifestation, this God. और वह जो गॉड था वह अलग अलग तरीकों से अपने आप को दिखाता था। Right? So some also worshipped Asherah. और कुछ थे जो अशेरा को आराधना करते थे, The other name was Ashtoreth. और दूसरा था एस्टोरेथ जिसको आराधना करते थे। And among the Canaanites gods, और कनानी के देवी देवताओं में one of the most evil gods और जो सबसे बुरा था, was the name called Molech और उसमें एक था जिसका नाम था मोलेक or Moloch. और मोलोक। Okay, Molech. So it says in Leviticus chapter 18 verse 21, लय व्यवस्था के 18वें अध्याय के 21वें वचन में, Leviticus 18 verse 21, लय व्यवस्था के 18वें अध्याय के 21वें वचन में God is commanding Israel, और परमेश्वर इज़राइल को यह आज्ञा दे रहा है, don't offer your children अपने बच्चों को मत दो as sacrifice to Molech. बलिदान के रूप में मोलेक को। Are you following? क्या आप मेरे साथ हैं? Okay, so I'm just going to give you a brief, what, how do I say, a brief history of how they worshipped तो मैं God आपको छोटा सा इतिहास बताने वाला हूं कि वो किस प्रकार आराधना करते थे, and why God was so strict in telling Israel not to worship them. और क्यों परमेश्वर इतनी सख्ती से कह रहा था कि आप इन देवी देवताओं को आराधना मत करना। Okay, so before I just share that, I'm going to erase this. तो इसको साझा करने से पहले मैं इसे मिटाना चाहता हूं। But just look at this circle. तो इस जो गोल है उसको देखिए आप। Okay, idol worship आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, will lead to punishment or God's judgment. जो परमेश्वर के न्याय या दंड के को अगुवाई करता है, लेकर आता है। And then eventually people will ask for forgiveness and God will forgive and restore them. और फिर क्या होगा कि लोग क्षमा को मांगेंगे और परमेश्वर उनको क्षमा करेगा और उनका पुनः निर्माण करेगा। And then again they will go back into idol worship. और फिर वो जाके दोबारा से मूर्ति पूजा शुरू कर देंगे। This is the history of Israel in the और- Old Testament. और पुराने नियम में यह इजराइलियों का इतिहास है। Israel ended up doing idol worship और इजराइल फिर से मूर्ति पूजा करने लगे, that led to God's judgment, फिर punishment. और फिर परमेश्वर का दंड या न्याय आया, And after that, someone will ask for forgiveness. और उसके बाद कोई उसमें से कोई क्षमा को प्राप्त मांगेगा, God will forgive them. फिर परमेश्वर उन्हें क्षमा करेंगे, And then they'll go back into idol worship. फिर वो मूर्ति पूजा करना शुरू करेंगे। This was the cycle in the Old Testament तो for a यह long जो- time. जी, तो यह था वह एक क्रिया जो पुराने नियम में हो रहा था। Why was again coming back to Baal and Molech? तो आइए हम मोलेक के बात करेंगे। I'll just share about Molech तो मैं मोलेक के बारे में बात करूंगा because of time. समय के Okay. कारण। So Molech was made up of bronze metal. और जो मोलेक था उसको तांबे के धातु से बनाया गया था। In Tamil, anybody speaks Tamil here? No. कोई तमिल बात करता है यहाँ Like पे? pittala. So they say like a copper, right? वेंकलम, I don't know what it is in Hindi though, but it's made up of bronze. तांबा। Right? So this idol was made up of bronze. तो ये तांबे से बना हुआ था। And what they will do, the Canaanites people will do, तो कनानी लोग क्या करते थे? they will put a fire all around this idol. और वह उस मूर्ति के चारों ओर आग जलाते थे। So this idol was half human and half animal. तो यह जो मूर्ति था वह आधा मानव था और आधा पशु या जानवर था, Like a jackal. एक जैकॉल की तरह। Right. So and then his hands would be like this. तो उसका जो हाथ था वो ऐसा था, His hands would be like this. उसका हाथ ऐसा था। So the Canaanites will put fire all around this idol. तो जो कनानी थे वो उस मूर्ति के चारों ओर आग जला के रखते थे। You know how hot a metal can become when it's fully on fire. तो आप समझ सकते हैं कि एक जो धातु या तत्व कितना गर्म हो जाता है जब उसके आसपास या चारों तरफ आग जला दी जाए। Yes or no?
हाँ कि ना, Okay, very hot. बहुत गर्म हो जाता है। And then you know what they would do? तो उसके बाद आपको मालूम है वो क्या करते थे? They would take a newborn baby और वह नवजात शिशु को लेते थे and they would offer it as a sacrifice on his hands of Molech. और फिर वो मोलेक के हाथों में उस नवजात शिशु को एक बलिदान के रूप में दे देते थे। That is how evil the practice of the Canaanites was. और इतना बुरा अभ्यास तो था जो वो करते थे कनानी। Now, because while they were keeping the baby on the hands, और जब वो बच्चों को या फिर शिशु को उसके हाथों में रखते थे and because they did not want the mothers to hear the cry of the baby, और वो चाहते थे कि जो माताएं हैं बच्चों का रोना ना सुने, all the idol worshippers, जितने भी मूर्ति पूजक थे, they will play the drums very loud. और वो क्या करते थे, वो जो ढोल होते थे उसको बहुत जोर से या नगाड़े को बजाते थे So they can't hear the cry of the baby. ताकि वह बच्चों के जो रोना है उनको सुनाई न दे। That is how evil the worship of the Canaanites were. और इस प्रकार का बहुत बुरा आराधना का अभ्यास था कनानियों का। Are you with me? क्या हमारे साथ है? Right? This is why God hates false worship, because nothing about false worship is beautiful. तो इसीलिए परमेश्वर झूठे आराधना को घृणा करता है, क्योंकि झूठे आराधना में कोई ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर को पसंद होती है। Are you following? क्या आप मेरे साथ हैं? Can we go just a little bit more deeper? थोड़ा सा और अंदर जाएं, गहराई में जाएं। Yes, okay. So we read yesterday Psalm 115 verse 4 to 8. तो कल हम लोगों ने पढ़ा भजन संहिता 115 का 4 से 8 Right? Those who make these idols will become like them. कि जो उन मूर्तियों को बनाते हैं वो उनके जैसे हो जाएंगे। And when you read this scripture, 2 Kings chapter 17, और जब हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 17वां अध्याय, when you read this chapter जब इस अध्याय को पढ़ते हैं आप from 14 to 20, 40 से 20 तक, you see आप देखते हैं that Israelites जो इजरायली थे compromised उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया and they began to do the child sacrifices. और वो भी बच्चों का बलिदान शुरू कर दिया। They did not obey the commandment of the Lord. वो परमेश्वर के जो आज्ञा थी उसको उन्होंने नहीं माना। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Okay, so idolatry will lead to immorality, और जो मूर्ति पूजा है वो हर एक बुरे नैतिकता को लेकर जाएगा, all sorts of immorality, हर एक प्रकार के बुरे चीजों पे, sexual immorality, यौन संबंध के बुरे चीजों में, right? Murder, everything. वो खून करना और हर एक बातों में, And that will lead to God's judgment. और फिर वो परमेश्वर के न्याय को लेकर आएगा। Okay, let's go to Numbers chapter 25. आइए गिनती की किताब उसका 25वां अध्याय में जाएंगे। No, we are not going to read the whole chapter. हम पूरे अध्याय को नहीं पढ़ेंगे। Are we all there? Numbers chapter 25. गिनती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, सब वहां पे हैं? Okay. Let's read. This is now Numbers 25 is a very important chapter in the history of Israel. और जो गिनती की किताब उसका 25वां अध्याय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है इजरायलियों के इतिहास के लिए। Okay, is everything okay at the back there? पीछे में आप सब सुन पा रहे हैं ठीक से? Okay, blue shirt. जो ब्लू शर्ट में भाई हैं, Everything fine? आप समझ पा रहे हैं? Okay. Right. So Numbers 25 is a very important chapter in the history of Israel. और इजरायलियों के इतिहास में जो गिनती का 25वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। The nation of Israel is traveling together. और इजराइल का जो राष्ट्र है वह यात्रा कर रहा है। They are going into the different countries of the Canaan. और कनान के दूसरे देशों में वो होकर गुजर रहे हैं। And they come against a people called Moabites. और वह मोआबी के विरोध में आते हैं। So verse 1. उसका पहला वचन, I'll read it in English. Please follow along with me. Numbers chapter 25 verse 1 onwards. और मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मेरे साथ आप पढ़ें।
while Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women. Okay, that's Numbers 25, verse 1. इजरायली सिमित में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे। Verse 2. Who invited them to the sacrifice of their gods? The people ate and bowed down before these gods. और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। Verse 3. तीसरा वचन। So Israel joined in worshipping the Baal of Peor, तो इस्राएल बालपोर देवता को पूजने लगे, and the Lord's anger burned against them. तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। Okay, so verse 1, what is happening? तो आप देख रहे हैं कि पहला वचन में क्या हो रहा है। Verse 1, the men of Israel तो इस्राएल के जो लोग, जो पुरुष थे, indulged in sexual immorality with Moabite women. और मोआबी लड़कियों के साथ वो कुकर्म करने लगे। Right? They indulged in sexual immorality. तो वो कुकर्म करने लगे। But how did they end up there? तो वहां पे वो लोग आए कैसे? It all started ये सब शुरू हुआ with Moabite women मोआबी स्त्रियों के साथ, inviting them to offer sacrifice to their gods. कि मोआबी स्त्री उनको बुलाए बलिदान देने के लिए उनके परमेश्वर को, उनके देवताओं को। In other words, उनके दूसरे शब्दों में worship, उन्होंने आराधना किया, false worship, झूठा आराधना किया, idol worship. मूर्ति पूजा किया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? So these men, first they went to worship, ये लोग पहले गए आराधना करने के लिए, and that led to sexual immorality, और फिर उसको कुकर्म की ओर ले गए, and that led to God's judgment. और फिर उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय हुआ। Okay, I encourage you to read the whole chapter. मैं चाहता हूं कि मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप पूरा अध्याय पढ़ें। We are not going to read it now. अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसे, Okay, but I encourage you to read it. तो मैं चाहता हूं कि आप सब इसे पढ़ें। Okay, just like pride, और जिस प्रकार घमंड, idol worship is dangerous. तो मूर्ति पूजा भी बहुत खतरनाक है, Nothing good comes out of idol worship. और मूर्ति पूजा से कोई भी अच्छी चीज नहीं आती। Right? In the last class, I said जो पिछले क्लास में मैंने कहा था, that all statues are idols, but not all idols are statues. तो मैंने कहा था कि हर एक प्रतिमा मूर्ति है, लेकिन हर एक मूर्ति प्रतिमा नहीं है। Sure, we are not living in the Old Testament now, हम लोग पुराने नियम में तो नहीं रह रहे हैं, but like I said yesterday, और जिस प्रकार मैंने कल कहा था, anything or anyone can become an idol in our lives. कोई भी या कोई भी वस्तु हमारे जीवन में एक मूर्ति का दर्जा ले सकता है। Right? Anything or anyone can take the place of God in our lives. कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर का दर्जा ले सकता है। Right? It could be money, हो सकता है कि वो पैसा, it could be even your ministry, हो सकता है कि वो आपकी सेवकाई, it could be any relationship, और हो सकता है कि आपका कोई भी संबंध, gadgets, आपके जो उपकरण हैं, music instrument, whatever. आपके वाद्य यंत्र, या कुछ भी हो सकता है। Right? In modern day, और ये आधुनिक दिनों में, right, anything or anyone can become an idol. और कोई भी या कोई भी चीज आपके लिए वह मूर्ति पूजा मूर्ति बन सकता है। Anything or anyone that takes the place of God in our lives becomes an idol. और कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति अगर आप परमेश्वर का जगह ले सकता है परमेश्वर के स्थान पर। And God has one simple message: और परमेश्वर का एक बहुत ही साधारण संदेश है, no negotiation. कोई भी इसमें दो राय नहीं है। Break down the altars. वेदियों को तोड़ डालो, Break down these idols. हर एक मूर्तियों को तोड़ डालो। Right? Anything that's taking the place of God in your lives, और कोई भी चीज अगर परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में ले रहा है, ask the Holy Spirit to show you what that is. और पवित्र आत्मा को पूछिए कि वो आपको दिखाए कि वह क्या है। You go before Him कि जब आप उसके पास जाएं and you say and you repent, और जाकर आप पश्चाताप करें, Lord, I am sorry कहें कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, that I have worshipped something or someone else instead of you. और कहें कि परमेश्वर मैंने किसी और को आपको छोड़ के आराधना किया है, I break down the altars of false worship. और जितना भी झूठी आराधना है उसके सारे वेदियों को मैं तोड़ डालता हूँ। For far too long I have worshipped money. और बहुत समय तक परमेश्वर मैंने पैसे को आराधना किया है। For far too long I have worshipped my talents and gifts. और बहुत समय तक परमेश्वर मैंने अपने तोड़े को, अपने वरदानों को आराधना किया है।
I want to break it all down. और सारों को मैं तोड़ना चाहता हूँ, And I choose to worship you और मैं चुनता हूँ कि मैं सिर्फ आपकी आराधना करूँ from this day forth. आज से लेकर। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Amen. And two more scriptures, and we'll close the topic on idol worship or false worship. और दो और वचन पढ़ेंगे और हम लोग इस टॉपिक जो आइडल वर्शिप के बारे में है उसको हम बंद करेंगे। Let's go to 1 Corinthians chapter 10, verse 14. पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 14वां वचन सब पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों कोई पढ़ेगा, मिला है तो? Okay, 1 minute. थैंक यू, धन्यवाद। Okay, so Paul is writing to the people of Corinthians. तो पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों के लोगों को लिख रहा है Is a very simple thing. और बहुत ही साधारण रूप से बता रहा है, Flee from idolatry. मूर्ति पूजा से बचे रहो, Okay, run from it. मूर्ति पूजा से दूर भागो, Don't negotiate. कोई भी दो राय मत रखो, Don't be tempted. कोई भी आपको टेम्पटेशन ना हो, Don't think about it. उसके बारे में सोचो मत, Flee from it. वहां से दूर भागो। Okay, one more scripture. Let's go to Colossians chapter 3, कुलैसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय verse 5 to 6. 5 से लेकर 6 तक। Let's look at only 5 for now. Verse तो आइए 5. हम सिर्फ पांचवा वचन को पढ़ेंगे। Okay. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। Okay. So it starts off by saying, put to death. तो वो कहता है मार डालो। हाँ, मार डालो. Okay, मार डालो. Right? So what is it saying? Put to death what is earthly in you. इसलिए जो भी पृथ्वी पर है उसको मार डालो, Sexual immorality, जो व्यभिचार है, impurity, अशुद्धता है, evil desires, दुष्कामना है, and covetousness, बुरी लालसा है, which is idolatry. जो मूर्ति पूजा है। Okay, so you see, there is no longer statues here, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी प्रतिमा नहीं है, right? There's no statues mentioned. यहाँ पे कोई प्रतिमा का नाम नहीं लिखा हुआ It's है। talking about the motives and the intention of your heart, तो आपके हृदय की दशा, आपके हृदय की इच्छा को वो दर्शाता है, the desires of your heart. जो आपका हृदय का इच्छा है उसको दिखा रहा है। Now that is idolatry. तो वह मूर्ति पूजा है। And again, Paul is saying, और फिर पौलुस यहाँ पे बता रहा है, don't negotiate, कोई भी दो राय मत रखो, put to death. उसको मार डालो। Okay, so with that, we'll kind of conclude this topic for today. और आज के लिए उससे हम आज के जो इसका जो टॉपिक है उसको हम लोग समाप्ति करेंगे। Did everybody follow? तो आपको समझ में आया? Yes. So what I would like to do is take this next 10 minutes. तो मैं क्या चाहता हूं कि आप 10 मिनट लें। Okay, you can close your Bibles. आप अपने बाइबल को बंद कर सकते हैं, You can leave your notebooks open. अपने नोटबुक को खुला रख सकते हैं। Francis, is it possible to play a pad? Can you play pad in any key? Yeah, pad, yeah. Yeah. So we're going to take the next 10 minutes. तो अभी हम अगले 10 मिनट, And I feel like we need to do this now. अब मुझे महसूस होता है, हो रहा है कि हम ये करना जरूरी है। I did not plan on doing this. मैंने ये कोई योजना नहीं बनाई थी इसे करने के But लिए। for the next 10 minutes or so, और 10 मिनट के तक I want you to pray. मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। I want you to pray. मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। I want you to ask the Holy Spirit मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से पूछें to reveal to you, कि आपको दिखाए, is there anything or anyone that I have worshipped as idol in my life? तो ऐसा कुछ है जो मैंने आराधना किया है एक मूर्ति की तरह अपने जीवन में। And I want you to ask for forgiveness and repent. और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से माफी मांगे और उसका पश्चाताप करें।
And as the Holy Spirit reveals to you, और जैसा पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है, I want you to begin to write down, और मैं चाहता हूं कि आप उसको लिखना शुरू कर दें, yes, I have worshipped this thing as an idol. और आप लिखें कि हाँ, मैंने इस चीज को अपने जीवन में एक मूर्ति का दर्जा दिया I था, have worshipped this person as an idol. और इस व्यक्ति को मैंने अपने जीवन में मूर्ति का दर्जा दिया था। Can we do that? क्या हम कर सकते हैं इसे? Yes, no, maybe? हाँ या ना हो सकता है। Okay, thank you. So, धन्यवाद। yeah, just begin to pray and ask the Holy Spirit to reveal to you. तो आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए और पवित्र आत्मा से विनती कीजिए कि वो आपको ये सारी बातों को बताए। Okay, even those who are joining us online, please join us in this exercise. और जो ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे साथ, हम भी उनको विनती करते हैं कि आप इस क्रिया में हमारे साथ रहें। Okay, don't look around, don't waste this time or opportunity. आप इधर उधर ना देखें, इस समय को आप बर्बाद ना करें, इस मौके को आप ना गवाएं। Let's just go before God today. आइए हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। Okay, don't waste this time. Just continue to look and ask the Holy Spirit to reveal to you. और इस समय को बर्बाद ना करें, पवित्र आत्मा से कहें कि वो आपको दिखाए। And as the Holy Spirit reveals to you, write down the false altars. और जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपको उस बातों को दिखाती है, तो आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। Father, we invite you into this room. पिता, हम आपका निमंत्रण करते हैं इस कक्ष में। We open up our hearts before you. हम अपने दिलों को खोलते हैं आपके सामने। We come before you as we are. और परमेश्वर, हम जैसा है वैसे ही आपके सामने आते हैं। Without hiding anything. हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं परमेश्वर। Lord, as Psalm 139 says, और जिस प्रकार भजन संहिता 139 कहता है, search me and know me, परमेश्वर मुझे ढूंढ और मुझे निकाल, and see if there's any wicked ways in me. और देख ताकि अगर कोई बुरी बात मेरे अंदर है। We make this our prayer right now. परमेश्वर, इसको हम अपनी प्रार्थना बनाते हैं आज। Search our hearts, O Lord, परमेश्वर, हमारे हृदय को खोज परमेश्वर, and show me if there's any wicked ways in me. और परमेश्वर मुझे दिखा कि इसमें कोई कुकर्म की बातें हैं कि नहीं। Forgive me माफ कर परमेश्वर for worshiping something or someone else कि मैं किसी और को या किसी और चीज को मैं आराधना करता था instead of you. आपके। I surrender my heart before you.
मैं अपने हृदय को समर्पित करता हूँ। Everything about me I surrender to you. मेरे मुझसे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। My plans for the future, मेरी योजनाएं जो भविष्य के लिए है, my worries about tomorrow, मेरी जो चिंताएं हैं कल के लिए, my finances, जो जो मेरे पैसे कौड़ी है उसको, all my desires, हर एक हमारी इच्छाओं को I surrender and bring it before you. मैं समर्पित करता हूँ और आपके सामने लेकर आता हूँ आती हूँ। I lay it on the altar before you. और परमेश्वर इस सब को मैं आपके सामने आपकी वेदी पर चढ़ाता हूँ चढ़ाती हूँ। My talents I bring before you. जो मेरे गुण हैं उसको भी आपके सामने लेकर आते हैं। My gifts I bring before जो you. मेरे उपहार हैं उसको भी आपके सामने लेकर आते हैं। I bring my weakness before you मैं मेरी कमजोरी को आपके सामने लेकर आता हूँ in exchange of your strength. ताकि मैं आपकी मजबूती को प्राप्त कर पाऊँ। So, Holy Spirit, तो तो पवित्र आत्मा come and show me everything that is not of you. और परमेश्वर आइए और मुझे दिखाइए हर एक चीजों को जो आपका नहीं है। I want to give my heart to you, मैं अपना हृदय आपको देना चाहती हूँ। my life to you. मेरा जीवन आपको देना चाहती हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, holy are you. Holy, holy are you, God. Come and break every altars of worship. Come and break every idols of worship. Come and break every false altars of worship, Jesus. Holy Spirit, come and break every chain. Come and break every shame. Restore the joy of your salvation. Restore, restore. We humble ourselves before you. We lay it all at the altar before you. My God, my King. We lay it all at the altar before you. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallowed be your name. Hallowed be your name.
Hallowed be your name. Mm. Hallowed be your name, Jesus. Thank you, Lord. Hallowed be your name. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. धन्यवाद यीशु Thank you, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Amen. आमीन Amen. Right. 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 Before we go for our break, और हमारे ब्रेक में जाने से पहले I just want to share one more passage of scripture. एक और जो वचन है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ Okay. I share this and we can go for our break. Just be with me for 5 minutes. और फिर हम जैसे मैं बताता हूँ 5 मिनट और मेरे साथ रहें In the book of Judges, और न्यायों की पुस्तक में Judges chapter 6. उसका 6वां अध्याय Okay. Judges chapter 6. न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय There is a story of a person called Gideon. एक कहानी है जो गिदौन या गिलियन के बारे में है Okay. Judges chapter 6. न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय So God comes and talks to Gideon. परमेश्वर आकर गिदियन से बात करता है Okay. You can read that whole chapter later, but just look at me for now. तो आप उस चैप्टर को बाद में पढ़ सकते हैं फिलहाल के लिए आप मुझे देखिए Okay. So people of Israel have been oppressed by the Philistines. और फिलिस्तियों से परमेश्वर इज़राइल के जो लोग हैं उनको बहुत प्रताड़ना हुई God comes to Gideon परमेश्वर गिदियन के पास आता है and he's telling, I will use you to set the people of Israel free. और कहता है कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा कि इज़राइल लोगों को मैं छुटकारा दूं You are going to lead an army of 300 people, और आप 300 लोगों की सेना को आप अगुवाई करेंगे and I am going to use you to defeat the Philistines. और मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा ताकि आप फिलिस्तियों को हरा सके But in verse 25 of chapter 6, और 6ठे अध्याय के 25वें वचन में God is telling Gideon, और परमेश्वर गिदियोन से कहता है before I use you, बिफोर मैं तुमसे इस्तेमाल करने से पहले before I use you to defeat the Philistines, और फिलिस्तियों को हराने से पहले I want you to first मैं चाहता हूं कि तुम पहले go and break the altar of Baal that your father is worshipping. तो जाके अपने जो पिता का जो वेदी उसने बाल के लिए बनाया था उसे तोड़ डालो So what God is saying is, तो क्या परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है before Gideon, I use you to go into your destiny.
कि जब तुमको इस्तेमाल करूं तुम्हारे मंजिल पे ले जाने के लिए, before you step into the destiny I have for you, और जिस मंजिल को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसमें कदम रखने से पहले, before you go and fight the enemy in the natural realm, और जाके जब तुम अपने शत्रुओं से लड़ोगे उससे पहले, I want you to first go and break the altars of false worship. और जाके तुम पहले जो झूठे आराधना है उसकी वेदी को तोड़ो। Are you with me? क्या समझ रहे हैं आप? Yes. So before you win any battle in the physical realm, और जब आप कोई भी भौतिक रूप से कोई युद्ध को जीतना चाहते हैं, you have to win it first in the spiritual realm. तो उस युद्ध को पहले आपको आत्मिक रूप से जीतना जरूरी है। So that's what true worship will help you to do. तो वही आपको सच्ची आराधना मदद करेगी करने के लिए, True worship will help you to win your battles in the spiritual realm. और सच्ची आराधना आपको सहायता करेगी कि आप जो आत्मिक युद्ध है पहले वो आप पहले जीत लें। So once you won your battles in the spiritual realm, और जब आपकी जो युद्ध है आप जब आत्मिक रूप में जीत जाते हैं, you can win your battles in the physical realm. तो आप वो भौतिक रूप में भी जीत पाते हैं। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? Okay. That's about it for this session. तो इस सेशन में यही तक हम I'm sorry रखेंगे, we took extra time. और हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा समय लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। Okay. Please go for your break and we'll continue after. और आप अपने ब्रेक के लिए जाए, फिर बाद में हम इसको